समन्वय सूत्र सव्वंपि अनेयन्तं परोक्षरूपेण जं पसायेरि तं श्रेणानं भन्नति संशयपहुधिः परिच्यक्तम्। लोयानं व्यवहारं धम्म विवक्षायिजो पसाहेति श्रेणानस्य वियप्पो सोविनो लिंग संभूतो नाना धम्म जुदम्पिय एयं धम्मं विउच्यते अर्थं तस्यैव विवक्षादो नत्थि विवक्षाहु शेषाणम् ते सावेक्षा सुनया निरवेक्षा ते विदुन्नया होन्ति सयल व्यवहार सिद्धि सुनयादो होदि नियमेन जावन्तो वयनपथा तावन्तो वा नया विशद्दाओ ते चे वय परसमया सम्मत्तं समुदया सव्ये परसमये गणयमयं तप्पडिवक्षनयो निवत्तेजा समयेव परिगह्यं परेण जं दोषबुद्धिये नियवयनिज्यसज्जा सव्वनया परवियारणे मोहा ते गुण नदिट्ठ समो विभयै सच्चेव अलियेवा न समेन्ति नय समेया सम्मत्तं नेव वत्तुनो गमगा वत्तु विधायायनया विरोहो वेरुणो चेव सव्ये समयन्ति सम्मं चेगवसावो नया विरुद्धावि भिच्च व्यवहारिणो इव रावो दासेन बसवत्ति जमने गधम्मनो वत्तुनो तदंशे च सव्वपडिवत्ति अंधौ गया वयवेतो मिच्छादिष्टिनो विषु जम्पुनसम्मत्तपज्याय वत्थुगमगत्ति समुदयातेणं सम्मत्तं चक्षुमौ सव्वगया वयगहणेव पन्नवनिज्या भावा अनंत भागो तु अनभिलप्पाणं पन्नवनिज्याणं पुनः अनंत भागो सुदनिबद्धो स्वयं स्वयं पसंसन्ता गर्हन्ता परं वयं जेव तत्र विहुस्सन्ति संसारं ते विहुस्या
नानाजीवा नानाकर्मं नानाविहं हवे लद्धि तम्हावयणविवादं सगपरसमयेहिं वज्जिज्जा भद्दमिच्छा दंसन समूह मय्यस्य अभयसारस्य जिनवर्णस्य भगवो संविग्गसुहाहिगम्यस्य Samana Suttam, Sutra 41, Samanvaya Sutra, Percepts on Reconciliation. English rendering. Gatha 7:22. That knowledge which reveals the multiple aspects of the things in an indirect form and is free from any doubt, etc., is designated as scriptural knowledge. Gatha 7:2-3. That knowledge which makes possible the transactions of the people and illuminates the desired property of the thing is a Naya, which is subtype of Shrutadhyana and born of a Provence. Gatha 7:24. Although a thing is possessed of so many properties, yet it is referred to by only one of these properties, because at the time exposition of only that property is required and not the remaining others. Gatha 7:25. The view which accepts the relativity or mutual dependence of these properties is a case of Naya proper, that is Sunaya, while the view that does not is a case of Naya improper, that is Durnaya. It is that rule that all the transactions become successful when based on a Naya proper. Gatha 7:6. There are as many points of view as there are modes of expression. In case of word also is employed, every statement or expression represents Jaina position. The same provides an alien position in case the word is not employed.
Certainly, right understanding demands a synthetic approach to all these statements about the thing. Gatha 7-7. Any specific extremistic viewpoint adopted by rival should be refuted by pointing out its rival viewpoint. The same should be our process in case some person following our own religious tradition adopts out of same faulty understanding any extremist view. Gatha 7-8. All viewpoints, that is the Nayas, are true in respect of what they have themselves to say, but they are false so far as they refute a rival viewpoint, that is the Naya. One who is well versed in the scripture should not divide the viewpoints, Nayas, into true and false one. Gatha 7-9. Every absolute point of view is independent of the other. They cannot be united together, and their union is not conducive to the right approach. They are independent of each other, like the opposing enemies. Gatha 7-30. Even though a single viewpoint, that is the Naya, taken be itself or by itself may appear to be opposed to the other Naya, yet when they are considered mutually dependent on each other, they would be conducive to the right understanding, like the servants who act in harmony when they come under common control, even though they may be differing when they are separated. Gatha 7-31. Those who treat some one portion or aspect of a thing as a whole thing have a wrong understanding, like those blind persons who treated some one particular part of an elephant as a whole elephant. Gatha 7-32. Those who take together all the standpoints and thus grasp all the aspects of a thing have a right understanding, just as those with eyes are able to grasp an elephant as a whole. Gatha 7-33.
the properties of the things capable of being described are infinite times less than those not capable of being described, while the properties described in the scriptures are infinite times less than those who are describable. In view of such problem, how can it be said that the statement of such scripture or person is absolutely true? Gatha 734. Those who go on praising their own view and condemning those of their rival simply make a show of their learning and are variously in the grip of transmigratory cycle. Gatha 735. There are various types of people, various types of their activities, various types of their capabilities. Hence, one ought to give up quarreling either with the people of one's own faith and also with that of the others. Gatha 736. Let glory be the holy teaching of Jinas, which is of the form of conglomeration of all false views, which is past of a nectar and is easy of comprehensions by those who are desirous to attain emancipation. Samana Suttam, Sutra 41, Samanvaya Sutra, Hindi rendering, Gatha 722. जो परोक्ष रूप से समस्त वस्तुओं को अनेकांत रूप दर्शाता है और संशय आदि से रहित है, वह श्रुत ज्ञान है। गाथा 723। जो वस्तु के किसी एक धर्म को विवक्षा या अपेक्षा से लोक व्यवहार को साधता है, वह नय है। नय श्रुत ज्ञान का भेद है और लिंग से उत्पन्न होता है। गाथा 724। अनेक धर्मों से युक्त वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करना नय का लक्षण है,
क्योंकि उस समय उसी धर्म की विवक्षा है, शेष धर्मों की विवक्षा नहीं है। गाथा 7:25 ये नए विरोधी होने पर भी सापेक्ष हो तो सुनय कहलाते हैं और निरपेक्ष हो तो दुर्नय कहलाते हैं। सुनय से ही नियम पूर्वक समस्त व्यवहारों की सिद्धि होती है। गाथा 7:26 वास्तव में देखा जाए तो लोक में जितने वचन पंथ है उतने ही नए हैं, क्योंकि सभी वचन वक्ता के किसी न किसी अभिप्राय का अर्थ जो है उसे सूचित करते हैं और ऐसे वचनों में वस्तु के किसी एक धर्म की ही मुख्यता होती है। अतः जितने नए साधारण हठग्राही है वे सब पर समय है, मिथ्या है, अवधारणा रहित यानी के सापेक्ष सत्याग्राही तथा स्यात् पद से युक्त समुदित सभी नए सम्यक होते हैं। गाथा 7:27 नय विधि के ज्ञाता को पर समय रूप एकांत या आग्रह पूर्ण अनित्यत्व आदि के प्रतिपादक रुजुसूत्र आदि नयों के अनुसार लोक में प्रचलित मतों का निवर्तन या परिहार नित्यादि का कथन करने वाले द्रव्यार्थिक नय से करना चाहिए तथा स्वसमय रूप जिन सिद्धांतों में भी अज्ञान या द्वेष आदि दोषों से युक्त किसी व्यक्ति ने दोष बुद्धि से कोई निरपेक्ष पक्ष अपना लिया हो तो उसका भी निवर्तन दैट इज निवारण करना चाहिए। गाथा 7-8 सभी ने अपने अपने वक्तव्य में सच्चे हैं, किंतु यदि दूसरे नयों के वक्तव्य का निराकरण करते हैं तो मिथ्या है। अनेकांत दृष्टि का या शास्त्र का ज्ञाता उन नयों का ऐसा विभाजन नहीं करता कि ये सच्चे हैं और वे झूठे हैं। गाथा 7-9 निरपेक्ष नय न तो सामुदायिकता को प्राप्त होते हैं और न वे समुदाय रूप कर देने पर सम्यक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक नय मिथ्या होने से उनका समुदाय तो महामिथ्या रूप होगा। समुदाय रूप होने से भी वे वस्तु के गमक नहीं होते, क्योंकि पृथक पृथक अवस्था में भी वे गमक नहीं है। इसका कारण यह है
कि निरपेक्ष होने के कारण वैरी भी भांति परस्पर विरोधी है। गाथा 730। जैसे नाना अभिप्राय वाले अनेक सेवक एक राजा, स्वामी या अधिकारी के वश में रहते हैं, या आपस में लड़ने झगड़ने वाले व्यवहारी जन किसी उदासीन यानी के तटस्थ व्यक्ति के वशवर्ती होकर मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये सभी परस्पर विरोधी न स्याद्वाद के शरण में जाकर सम्यक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात स्याद्वाद की छत्र छाया में परस्पर विरोध की कारणभूत सावधारणता दूर हो जाती है और वे सब सापेक्षता पूर्वक एकत्र हो जाते हैं। गाथा 731। जैसे हाथी के पूंछ, पैर, सूंड आदि टटोलकर एक एक अवयव को ही हाथी मानने वाले जन्मांध लोगों का अभिप्राय मिथ्या होता है, वैसे ही अनेक धर्मात्मक वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करके हमने पूरी वस्तु जान ली है, ऐसी प्रतिपत्ति करने वालों का उस वस्तु विषय ज्ञान मिथ्या होता है। गाथा 732। तथा जैसे हाथी के समस्त अवयवों में समुदाय को ही हाथी जानने वाले चक्षुमान यानी कि दृष्टि संपन्न का ज्ञान सम्यक होता है, वैसे ही समस्त नयों के समुदाय द्वारा वस्तु की समस्त पर्यायों को या उसके धर्मों को जानने वालों का ज्ञान सम्यक होता है। गाथा 733। संसार में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो अनभिलाप्य है, शब्दों के द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे पदार्थों का अनंतवा भाग ही प्रज्ञापनीय यानी के कहने योग्य होता है। इस प्रज्ञापनीय यानी के कहने योग्य पदार्थों का भी अनंतवा भाग ही शास्त्रों में निबद्ध है। ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि अमुक शास्त्र की बात या अमुक ज्ञानी की बात ही निरपेक्ष सत्य है। गाथा 734। इसलिए जो पुरुष केवल अपने मत की प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे के वचनों की निंदा करते हैं और इस तरह अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, वे संसार में मजबूती से जकड़े हुए हैं, दृढ़ रूप से आबद्ध है। गाथा 735। इस संसार में नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है, नाना प्रकार की लब्धियां हैं। इसलिए कोई स्वधर्मी हो या परधर्मी
किसी के भी साथ वचन विवाद करना उचित नहीं। गाथा 7:3-6। मिथ्या दर्शनों के समूह रूप अमृत रस प्रदायी और अनायास मुमुक्षुओं की समझ में आने वाले वंदनीय जिनवचन का कल्याण हो। श्रवण सुत्तम सूत्र 41 समन्वय सूत्र संस्कृत रेंडरिंग गाथा 7:22 सर्वमपि अनेकान्तं परोक्ष रूपेण यत् प्रकाशयति तत् श्रुतज्ञानं भण्यते संशय प्रभृतिभिः परित्यक्तम्। गाथा 7:2-3 लोकानां व्यवहारं धर्म विवक्षया यः प्रसादयति श्रुतज्ञानस्य विकल्पः सः अपि नयः लिंगसम्भूतः। गाथा 7:24 नानाधर्मयुतः अपि च एकः धर्मः अपि उच्यते अर्थः तस्य एकविवक्षातः नास्ति विवक्षा खलु शेषाणाम्। गाथा 7:25 ते सापेक्षः सुनयः निरपेक्षः ते अपि दुर्नया भवन्ति सकल व्यवहार सिद्धिः सुनयात् भवति नियमेन। गाथा 7:6 यावन्ते वचनपथास्तत्त्वन्तो वानयः अपि शब्दात् त एव च परसमयः सम्यक्त्वं समुदितः सर्वम्। गाथा 7:27 पर समयैकनयमतं तत् प्रतिपक्ष नयतो निवर्तयेत् समये वा परिगृहीतं परेण यत् दोषबुद्ध्या। गाथा 7:28 जिन कवचनीय सत्यः सर्वनयः पर विचारणे मोदः तान् पुनः न दृष्ट समयो विभजति सत्यान् वा अलिकान् वा। गाथा 7:9 न समयन्ति न च समेतः
सम्यक् त्वं नैव वस्तुनो गमकः वस्तु विधाताय नयः विरोधतो वैरीणैव। गाथा 7:30। सर्वे समयन्ति सम्यक् त्वं चैकवशात् नया विरुद्धः अपि भृत्यव्यवहारिण इव राजोदासीन वशवर्तिनः। गाथा 7:31। यदनेकधर्मणो वस्तुन् तद्दंशे च सर्वप्रतिपत्तिः अंधा इव गजावयवे ततो मिथ्यादृश्चयो विष्वक्। गाथा 7:32। यद पुनः समस्त पर्याय वस्तुगमका इति समुदितास्तेन सम्यक् त्वं चक्षुष्मन्तः सर्वगजावयग्रहणैव। गाथा 7:33। प्रज्ञापनीया भावाः अनन्तभागः तु अनभिलाप्यानाम्। प्रज्ञापनीयानां पुनः अनन्तभागः श्रुतनिबद्धः। गाथा 7:34। स्वकं स्वकं प्रशंसन्तः गर्ह्ययन्तः परं वचः ये तु तत्र विद्वस्यन्ते संसारं ते व्युच्छुतः। गाथा 7:35। नाना जीवा नाना कर्म नाना विधा भवे लब्धिः तस्माद् वचन विवादं स्वपरसमयैर्वर्जयेत्। गाथा 7:36। भद्रं मिथ्यादर्शन समूहमयस्य अमृतसारस्य जिनवचनस्य भगवतः संविघ्न सुखाधिगम्यस्य।